लीडर नवा बनाया इलेक्शन का टाइम है। अच्छे काम किया। बैलो बैलो मेरा भी सच का जानते हो कि अकाली दल भाजपा की भाजपा दल मंत्री करके
रखो कि दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों पंथ की साजना की उस टाइम औरंगजेब का राज से औरंगजेबी राज के अज तो भी बहुत बड़े पैमाने से जबर होता बड़े साहबजादों की शहादत सिख जिहड़े सी बड़ा घल्लूघारा साहब उस शहादत की एक मुंह बोलती तस्वीर है। छोटा घल्लूघारा साहब उसकी वो मुंह बोलती एक तस्वीर है। लोगों ने अपने अपनी कुर्बानियां दे दी। मैं आज तुहानू भी पूछना चाहता कि आज ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਫਰ ਦਾ ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਾ ਪਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਕੀ ਹੈ ਔਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ अच्छा बड़ी वो फिर बहन है यार ਕਿਹੜੀ ਆ नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, सरदार फतेह जंग सिंह बाजवा जिंदाबाद, सरदार फतेह जंग नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਠੋ महिला वोटर ने उन्होंने मिलने गए ने उन्होंने जान पछाण करनगे और पार्टी दी नीतियां और वोट पाने की अपील बाजवा साहब के अगे प्रोग्राम बड़े ने ते थोड़े लेट भी ने। हुण मैं भाजी फतेह जंग सिंह बाजवा जी नूं बेनती करांगा कि 2 मिनट वास्ते अपने विचार दसन। सरदार फतेह जंग सिंह जी बाजवा, जनरल सैकटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस। 22 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के प्रधान सरदार प्रताप सिंह बाजवा को दोबारा ये चोन लड़न दे काम सेवक देखो तुसी पिछली बार सरदार प्रताप सिंह बाजवा को जिता के पार्लीमेंट में भेजा और बाजवा साहब ने ताड़ी हक्कां की लड़ाई लड़ते हुए पार्लीमेंट के बाजवा साहब ने हिंदुस्तान लैवल के उत्ते कीते जिहड़े कि मैं तुहानूं भरावां नूं दसना चाहता। एक काम ते वन रैंक वन पेंशन वाला जिहड़ा फौजी भरावां ने सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने कीता एक बहुत वड्डा काम सी जिहड़ा 32 साल तो फौजी भरा अपनी इस लड़ाई अपनी इस मांग लई सरकारां कारण उन्हां तरीके दे नाल जिहड़े साडे कांग्रेस पार्टी दे ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हां नूं समझा के उन्हां नूं नाल
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਤੇ 30 ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਮੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 76 ਪੌਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਕਰਕੇ ਲੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਬਣੀ ਹੈ ਟੀਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਜੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਠਾਕਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਠਾਕਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਿਆ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਲਗਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। तो मैं लंबी चौड़ी गल ना करता होया मेरी बेनती है कि तुसी मेरे तो मैं तुहाडा ये रिश्ता पिछले 60 साल का बड़े बाजवा साहब के नाल जुड़िया हुआ तुहाडे नाल असीं अगे तोड़िया। बड़े बाजवा साहब ने जो बेड़ का ते ढाई का किया सर प्रताप सिंह कैरों 1962 च लैके जदों आए छंब दे विचों जिस तरह सड़कां कड्डियां ना बैठे ने साडे दतारपुर वाले वो जो पुल बने ने जब इन्हों ने मैनू कहा कि बाजवा साहब इतों सड़क बनानी सद के पूछा चीफ इंजीनियर कि इन्होंने तो चलो पिंड वालों का काम तो होता मंगना गल जबान ने तो मंगना ही होता। तो 14 फुट डूंगे छंब के विचों ये सड़क के पुल बनेगा किस तरह? वो कहता जी तुम साढ़े तक रहन दो, मैं रहन की दिए बन जाएगा कहते जी बना देंगे तो मैं बन भी जाएगा तो कहते खलोता भी रह जाएगा। ये ना करे कोई करोड़ों रुपये सरकार के डोब के तो मगर जी तुम ना करो एहो जिहा काम करांगे कि ना पुल डिगेगा ना सड़क डिगेगी तो लोगों को भी पता लग जाएगा कि ये चीज़ां जड़ियां हाथ के सरों किस तरह जवाब वारे वारे होए। अज बेड़ दियां जमीनां 20 लाख रुपए किला हो गया अजे 100 रुपया किला से हुण 30 लाख रुपया किला। तुसीं आपे देखो किस तरह हर घर दे विच कोई ना कोई साधन है। इस वास्ते बहुत वधिया सानूं मौका मिलिया जे तकरीबन सानूं 60 साल तो बाद मौका मिलिया ते बाजवा साहब साडे प्रधान ने ते प्रधान दी जिहड़ी हुंदी है ना सीढ़ी इक्को चिट्ठी रह गई इक्को स्टैप रह गया। अगला स्टैप जिहड़ा है मुख्य मंत्री पंजाब होएगा ऐसी वोटां पाओ रज के और अंदर करते वोट जिहड़ी है बहुत लोग पा रहे हैं इन्हां को अकाली लोग भी दुखी आ गए अकालियां दी सानूं वोटां पैणियां तगड़े हो गया सी वोटां पाओ ते चार दा एक बारी मंत्री नूं जेते नहीं रखते वो गल्लां चेता करवाया। मैं हुण पिछे बैठे सूबेदार मेजर सरदार प्रीतम सिंह जी होरां तो पुछया ते उन्होंने मैनू दस्या कि इत्थे सरपंच जमन लाल जी ठेक ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦੀ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਕਾਈ ਕੰਦੀ ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਵਿਆਹ ਟੱਪ ਮੰਨੋ ਬੰਨੀ ਪਰ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਫਰ ਉਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠਹਿਰਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਆਮਦਾ। प्यारे वीरों में बैठा नहीं किसी जगह से सारे चुपना तामुल बढ़ता है सच आख्या बड़ा कीमती समा अपना घरों कढ़ के आए जे गल्लां में ध्यान दो तुसीं पार्टी के वोटर नहीं तुसीं सपोर्टर जे प्रताप सिंह जी बाजवा नाराज नहीं करना हुण क्योंकि बादल साहब आ गए ने ते मैं उहदे शख्सियत आई ने धन्यवाद अपने जो दसने प्रताप सिंह जी बाजवा सरदार फतेह राहुल गांधी सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा बहुत देर तो जिन्हों की उड़ीक सी मैं बाजवा साहब को इजाजत लवांगा कि आप पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी उन्होंने नाल आए साडे बहुत ही सत्कारयोग वीर सरदार फतेह जंग सिंह जी बाजवा साहब ते बाकी सारे आए मेरे बेट इलाके तो 5-7 पिंड तो जिन्होंने तुहानूं सद्दिया कांग्रेस पार्टी नाल प्यार करने वाले कांग्रेस वर्करों ते प्यारे वीरों ते बजुर्गों काफी समा हो गया तुहानूं बैठे मेरे तो पहले सारे बोलते हैं चार भी सुने सारे ने
अपना बाजवा साहब को सुनना, मैं बाजवा साहब ने ਤੁਹਾਡੇ दरम्यान जाना तैयार नहीं रहना। दो छोटी छोटी गल्लां करनियां ने, हिमाचल लेके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ देना भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ बड़ा कोई गल बड़ी रिश्वत हो रही है। रिश्वत की गल तो मैं सुनानी है जी मेरे नाल वापरी हुण ते जे वर्कर नाल वापरी अज तो 4-5 साल पहले की गल है, 7 साल हो गया सरकार इन्हां दी बनी। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, अज असी दोबारा झोली डट के तुहाडे कोल 30 अप्रैल वाले दिन सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा नूं दोबारा पार्लीमेंट में भेजने लई वोट मंगण लई आए। मेरे वीरों गल्लां बड़ियां सिद्धियां ने। गल यह है भी सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा नूं पिछली बार 2009 दे विच तुसीं पार्लीमेंट में भेजिया। पार्लीमेंट में जाके सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब दे वास्ते, पंजाबीयत दे वास्ते, किसानां दे वास्ते, गरीबां दे वास्ते, फौजियां दे वास्ते जदों हा दा नारा मारिया ते श्रीमती सोनिया गांधी ने सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा की लियाकत नूं वेखदे होया स्टेज उत्ते जिन्ने सारे साथी बैठे ने, मैं नाम लैन दे वक्त किसी का नाम रह गया तो होर नाराजगी होएगी। दूसरी गल वक्त क्योंकि काफ़ी हौली हौली लेट हो रहे हैं, मैं चाहना कि जल्दी दे विच गल करके सारे साथियों को इजाजत ली जाए। इत्थे बैठे हुए सारे ही मेरी जिन्नी बैठी साध संगत है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल इस तरह के पुराने वक्त के विच पंडित जी बहुत सारे लोगों को गल समझानी पई। अज हर व्यक्ति उन्होंने कांग्रेस की टिकट नाल नवाज के सियासी जो हालात उदों होए बारी बारी मैं दोहराना नहीं चाहता। बुजुर्ग इस गल के गवाह ने कि किस किस्म के हालात इत्थे सन। इत्थे मैं नौजवान बच्चों को दसना चाहना कि उस टाइम पैड़ी का रेट बेड़ दे बाकी कोई भी साडी डिवेलपमेंट है वो तुसीं भी जानते हो कि वो होनी चाहिए आ। बाकी सानू कोई औखी भारी पै जाती है वो सानू इन्हां दे नाल पूरा साथ देना चाहिए। और वोट जो भी है इन्हां दी भी ते साडी भी वोट इक्को जी आ, किसी च घट वध नहीं आ, साडी वध गिनती आ। ते बाकी असीं तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के चलदे आए हां ते चलांगे ते गाड़ी जो भी साडा काम होएगा असीं सीधे तुहाडे कोल पहुंचांगे। भजना क्यों महाराज आगे पंजाब भावें वो रेत होवे, भावें केबल टीवी होवे, भावें बसां होण, भावें कोई होर कणक कित्थों आउंदी है। मैं तुहानूं एक सारे भरावां वास्ते दस देना चाहुंदा गल भी जिहड़ी आटा दाल सानूं देण डे ना गरीबां नूं, जिन्ने ठेके शराब के पिंड पिंडियां ने खोल दिते, पिंड के चार ब्रांचां खोल दित्तियां वा। मैनूं ये तां 1 लाख रुपया आपां सरकार नूं फीस देनी जिहड़ी बोली दित्ती आ साल के हिसाब नाल, जे 2 करोड़ का लिया तो जिहड़ी फीस बनदी नाल 200 रुपये या 300 रुपये जो सबसिडी कणक की हैगी है, जिहड़ी दाल 25 किलो या 35 किलो देनी है ते 400 रुपया एक घर का 30 दिन जिहड़ा बंदा माड़ा मोटा मतलब नहीं पंजाबी लोग काम जो करके आउने तो पैग शैग तो सारे पीने ही कोई कारण है जो लड़ाइयां पई घर 4-5 बोतल महीने की भी आप पी जन्ने कणक नूं वध रुपये सरकार साडे कोल बेच देंदी। मेरे को लैके मेरे सिर दी जुत्तियां मारन दे कहंदे असीं बड़ी कणक वो सानूं ठेकेदार कोई नहीं आता था स्पेशल लिख के लै रहे हैं यार रुपये आटा दाल तो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तो तुम कहते हो गल्लां आपां करदियां वा जिहड़ियां कहंदे भी हाई घट हाई वाली भी बता दित्ती है किसां जब बाकी सानूं मंगां मंगण दी लोड़ नहीं। इस गल की माफी दिओ कि लेट होए हैं असीं इलैक्शनां दे दौर च हर कोशिश के बावजूद सारे साथी अपने प्रोग्राम अपने आप ही लीक लेंदे ने। जिथे जाने हो कहते इतने चाह जरूर पीनी है, दूजा कहता बेनती मैं सारे पहले की सी कि पिंड तार निकलने जे चाह का प्रोग्राम खाने का प्रोग्राम ना रखिए फिर अपने आप प्रोग्राम बना दो कहते कोई गल नहीं जी पिंड तो 10 ही लगने ने तुहानूं आपे पता जिथे तक चले जाओ 10 से कितने लगते हैं
तो इस गल तो बड़ा कीमती है उसे हर बंदा तुझे इंतजार करना भी किया तो मैंने इस गल की माफी दी है। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਊਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਬਾਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। परवीन सरकार बालवा साहब स्टेट के मेरे बर्मा साहब और सारे कपड़ों के सजनों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू साहब जी हैं। ये बालवा साहब की इलेक्शन नहीं, ये सारी सारे की इलेक्शन है। जो काम बालवा साहब के पिताजी ने सरदार के बाबा जी ने पता जो काम पिताजी ने प्रताप कर्म करवाए सन वो अपने हथी काम करने कि सानू बड़ा मान है कि सारे अकाली गुरु रूप साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे तो पहले मैंने माफी दियो टाइम साढ़े हाथ वास्ते नहीं रह जाता। सो गल ये है कि ये सारिया गल्लां पहले बेनती भी करी दी है कि कृपा करके देखने पिंड गढ़ने ने रोटी चाह पानी जो कुछ है चीज दी लै आओ खड़े हो ना फिर रखिया जांदियां ने फिर जाना पैंदा मजबूरी नाल। सो औखियाई तुहानूं कट्टनी पैनी। एक पासे तो कहंदे प्रताप सिंह आंदा बड़ा थोड़ा तो जे मैं आ ही गया तो फिर हम 4 घंटे से थोड़ा टाइम लै गया तो कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई गल नहीं हम थोड़ा जहा वक्त जरूर लगेगा। मजबूरियां ने इलेक्शनां दियां हर कोशिश के बावजूद टाइम नहीं लिया जाता। तो मेरी गुजारिश सारे वीरों को यह है कि गल इस तरह कि तुहाडा ते मेरा रिश्ता अज 60 साल बहुत सारे इतने बैठे हुए बुजुर्ग स्वर्गवासी शाह सतनाम सिंह भाजपा जी ने जुड़े। तुहानूं पता है कि किसी टाइम 1962 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂਪੁਰ ਸੈਦੋਵਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਹਿੱਸਾ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਓ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਬਰਸਾਤ